Hello children, welcome to my channel Shri Tutorials. Today we are going to study 12th Economics, chapter number 3a, Demand Analysis. See, here we are going to see the demand. What is demand? Demand means in ordinary language or the layman's language it's a desire. But economics, desire and demand are different. See, what do you mean by desire? Desire is an urge to have something. An urge to have something is your desire. And demand? Demand is a desire which is backed by willingness and ability to pay. क्या होता है डिमांड? डिमांड डिजायर है, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए? बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तुम्हारी इच्छा भी होनी चाहिए और तुम्हारी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए पेमेंट करने की. सी दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायर एंड डिमांड 2 marks, और they will ask you question number 2a, identify the concept. Okay, suppose they will give you the example, a beggar wants to buy a car. Okay, so for beggar it's a desire, not the demand. So your answer should be desire, not the demand, because he is having willingness but he does not have the ability to pay. He is having desire, then willingness to purchase, but does not have the ability to pay. So it does not a demand, it's a desire. Okay, then formula is demand is equal to desire plus willingness to purchase plus ability to pay. Here we are going to study individual demand. तुम्हारे बुक में बहुत सारा है, वहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ you have to study the individual demand and what is market demand. बस for what purpose? It is for distinguish between individual demand and market demand. या फिर क्वेश्चन नंबर 5 ABC कहीं पे भी पूछा जा सकता है. ये जो टेबल है उसे कंप्लीट करना है या और उसका ग्राफ निकालना है. So, what is individual demand? Individual demand is nothing but the quantity of a commodity demanded by a consumer. It is the quantity of a commodity. It's a individual demand. Don't write quantities of a commodity. It's a quantity of a commodity demanded by a consumer. A consumer, एक consumer. मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, यहाँ पे ओनली वन कंज्यूमर. डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, गॉट इट? व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड? एक ही कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड करता है एट अ गिवन प्राइस, मीन्स 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 6 रुपीज़, कोई भी प्राइस पे अगर डिमांड करता है, लेकिन एक ही कंज्यूमर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज योर इंडिविजुअल डिमांड. नाउ योर मार्केट डिमांड. सी, योर मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी. अ कमोडिटी ही आएगा. फॉर अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, demanded by all the consumers. Individual demand is by a consumer. Here all the consumer at a given price during a given period of time. See, for distinguish between you have to write down only the individual demand meaning लिखो, market demand का meaning लिखो. individual demand में क्या लिखोगे? It's a narrow concept. market demand में लिखना है it's a broad concept. खत्म. 2 मार्क्स के लिए 2 ही पॉइंट लिखने हैं. ओके, नाउ हाउ टू कंप्लीट दिस टेबल? सी, प्राइस इज 10, कंज्यूमर ए, क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर ए, बी एंड सी इज गिवन इन इज द टोटल मार्केट डिमांड. सो योर प्राइस इज 10 रुपीज, ए कंज्यूमर 5, बी कंज्यूमर 10, 15, सी कंज्यूमर 15. So total is 5 plus 10 plus 15. कितना हो गया? 30. Here at rupees 8, it's a 10, 20, 30. Then 40 में से 30 गया, कितना रह गया? It's
Okay. Now it's a 20, 25, it's a 45 and total is given as the 60. 60 में से 45 minus करोगे, you will get the 50. 20, 25, 45 plus 30, 75. And here 65 is there, 55 is there, 90 rupees means here you have to write down the C. 5. We require 5 plus 5 10. 3 plus 3 6. We require 9. तो ये क्या हो गया 35. Got it? और जब डिमांड का निकालोगे, ग्राफ निकालोगे तो ग्राफ ये अमाउंट पे निकलेगा, नॉट ऑन दिस. ये मार्केट डिमांड पे निकालोगे. Got it? समझे? 5A में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5A या 5B में वो टेबल पूछा जाएगा. ओके. देन टाइप्स ऑफ डिमांड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओनली वंस दे आस्क, आई थिंक March 24, आई थिंक सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 1 year they ask types of demand. So first one is direct demand. Otherwise they will ask you the here question number 2A, identify and explain the concept. Direct demand. Direct demand means the demand for the goods which satisfy the consumer's wants directly. Demand for the goods which a consumer satisfy their wants directly. For example, consumer goods. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो हम लोग यूज करते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स करते हैं, जैसे शुगर है, ग्रेन्स है, कार है, सोप है, क्लोथ है. डायरेक्टली वी आर यूजिंग इज अवर कंज्यूमर गुड्स. सो डायरेक्ट डिमांड इज फॉर द कंज्यूमर गुड्स. सेकेंड इज योर इनडायरेक्ट डिमांड विच इज ऑल्सो नोन एज द डिराइव्ड डिमांड. It refers to the indirect demand refers to demand for goods which are needed for further production. Means take the example of machinery where workers, labor ले लो, then your machinery, raw material, we cannot use directly. After finishing the product, finished product, we are going to use it. So this is having the machinery के लिए, वर्कर्स के लिए डिमांड कैसे होगी? डिराइव डिमांड और द इनडायरेक्ट डिमांड. So it refers to demand for goods which are needed for production. Indirect demand for produce is for the producer's goods and direct demand is for the consumer goods. Okay, all factors of products have the indirect demand. For example, demand for labor in a sugar factory. तो लेबर क्या है? शुगर फैक्ट्री में लेबर की डिमांड है, तो लेबर के लिए जो डिमांड है वो क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड. नो वन इज गोइंग टू यूज द लेबर फॉर द टी, दे आर यूजिंग द शुगर. सो फॉर शुगर इंडस्ट्री दे रिक्वायर द लेबर, सो लेबर हैज द इनडायरेक्ट डिमांड. Then third one is complementary or the joint demand. The name only suggests the complementary. एक दूसरे के सिवा नहीं कंप्लीट होगा. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री और अ जॉइंट डिमांड. टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार एंड फ्यूल, देन योर टी एंड शुगर, या टी एंड टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर. विदाउट दैट द कॉफ़ी इज नॉट एबल टू मेक. ओके. So when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, एक ही want को complete क्या करना है? satisfy करना है. and because of that they require the two or more things. कार है तो कार के लिए फ्यूल चाहिए. फ्यूल में पेट्रोल आ सकता है, डीजल आ सकता है, CNG हो सकता है. so without that car cannot work. okay. तो कार का कुछ तुम लोगों को फ़ायदा होगा क्या? नहीं. और इफ फ्यूल इज़ नॉट देयर, कुछ भी फ़ायदा नहीं है. ओके. और पेट्रोल के लेकर के तुम लोग घूमने नहीं जाने वाले. सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. देन कंपोजिट डिमांड. हियर स्टूडेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक. कंपोजिट डिमांड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी
which can be put for several uses. Composite demand means the demand for a commodity which can be put for several uses. ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं, लाइटनिंग के लिए, फ़ैन के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, अलग अलग उसके क्या होते हैं, तो फ़ायदे होते हैं, यूज़ होते हैं. सो इट्स अ कंपोजिट डिमांड. ओके, कॉम्पिटिटिव डिमांड. यह कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या होता है, डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है, ये नहीं तो वो चल सकता है. जैसे कि अपने टी और कॉफ़ी, कभी चाय नहीं बनी है, कॉफ़ी बना सकते हो तो कॉफ़ी बनाते हैं. शुगर और जैगरी, नावडे जैगरी के भी चाय मिलना स्टार्ट हो चुका है. तो एक दूसरे के लिए, दूसरा क्या बोल सकते हैं तुम लोग, माधा के लिए स्लाइस है, फ्रूटी है. देन 7 अप के लिए क्या है तुम्हारा, स्प्राइट है. तो इस तरह से क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलेंगे. और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि एक दूसरे के सिवा नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री. हियर यू आर मेकिंग द मिस्टेक कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड में, जहाँ पे तुम लोगों को 1 मार्क के लिए यहाँ पे भी पूछा जा सकता है रिलेशंस, कोरिलेशंस में. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. एग्री डिसएग्री 8 मार्क्स के लिए अभी तक पूछा नहीं गया, इस सिलेबस में मार्च सितंबर 21 से पूछा नहीं गया है, बट 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. एग्री डिसएग्री में प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट. ओनली वर्ड इफ एग्री डिसएग्री में कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में पूछा गया ओनली, देन ओनली मीन्स यू हैव टू राइट डाउन डिसएग्री, और उसे छोड़ के दूसरे 4 पॉइंट को यू हैव टू एक्सप्लेन. मीन्स अगर प्राइस पूछा तो प्राइस को छोड़ के बाकी 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट तुम लोगों को क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं. ये फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर द फैक्टर्स. जो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग इसे क्या करेंगे, तो उसे अजम्पशन में लिखना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज योर प्राइस. सी डिमांड एंड प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. When the price rises, demand falls, and when the price falls, demand rises. So it has the indirect relation. Got it? So you have to write down, consumers prefer to purchase in large quantity when price is less, and vice versa लिखो, या फिर अगले vice versa means उल्टा. When the consumers prefer to purchase small quantities when price is more. इनकम, इनकम क्या बताता है, इनकम डिसाइड्स द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर की औकात बताता है. इन शॉर्ट इनकम अगर ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होती है, और परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है मीन्स डिमांड भी ज़्यादा होती है. सो इट हैज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम एंड डिमांड. सो income decides, the first point you have to write down, income decides the purchasing power of a consumer. It influences the demand. When the income, y means income, in economics y means your income. When there is a rise in income, it leads to the rise in demand. दोनों एक ही तरफ चला जाएगा तो डायरेक्ट, एक बढ़ता एक कम होता तो इनडायरेक्ट, और द इनवर्स. Then prices of substitute goods. A substitute goods prices are low, then people purchase then the demand for cheaper goods are more than the costly goods. Suppose tea and coffee is there, substitute goods है tea and coffee. So यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी, इफ द टीज प्राइसेस आर लो
then people buys the tea then the coffee. So कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, हाँ, एंड टी की डिमांड क्या हो जाए, टी की डिमांड कम होगी और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी. ओके, गॉट इट. वापस से सुनो. सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स टी एंड कॉफ़ी. सपोज टी प्राइसेस आर लो, देन पीपल विल परचेज द टी देन द कॉफ़ी. सो कॉस्टली गुड्स कौन से हो गए? कॉफ़ी. सो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और टी की डिमांड बढ़ जाएगी. गॉट इट. देन नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स विच गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स विच गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कार एंड फ्यूल. Complementary means car and fuel. Changes in price of one commodity affect the demand for another commodity. एक की प्राइस का डिमांड क्या हो जाता है? दूसरे के प्राइस पे असर करता है, दूसरे के डिमांड पे असर करता है. Take the example of price of fuel rises when the demand for cars falls. If the prices of fuel rises, then the demand for car falls. Got it? Size of population. When the population rises, the demand for goods also rises. अगर आजू बाजू में कोई नई दुकान खुली और वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनका डिमांड आर मोर. When population more, demand also more. And vice versa. Then nature of product. Nature of product में होते हैं necessary goods होते हैं, luxurious goods होते हैं. Okay. So if the goods are or the commodity is necessary, daily life के लिए अपना salt है, then medicines है, these are food grains है, these are the necessity goods. हाँ, जिसको हम लोगों को कोई भी प्राइस पे क्या करना है? परचेज करना ही है. If a commodity of necessity goods and its use is unavoidable, demand will continue to rise irrespective of prices. Irrespective of price क्या होता है? डिमांड बढ़ते ही जाएगा. Then expectation of future prices. एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस मीन्स क्या होता है? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कम होगा या ज़्यादा होगा. हाँ, लिसन. इफ वी एक्सेप्ट एज अ कंज्यूमर, इफ वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट करता है प्राइस फॉल होने वाली है, ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. जो भी प्राइस है उसके ऊपर वो कम ही परचेस करेगा, कम प्राइस है तो भी, क्योंकि और नीचे गिरने वाले हैं. ओके, प्राइसेस. गॉट इट. देन इज योर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द डिमांड. ही प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. The preferences of consumer also changes and it affects the demand for many products. देखो, हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तभी हम लोग बोलते हैं हाँ इसे परचेज करना चाहिए. देखते हैं परचेज करके क्या होता है, कैसा है. हाँ, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होते हैं? एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सेल्स प्रमोशन स्कीम होती है, मतलब बाय वन गेट वन फ्री. ये सब क्या है? तो सेल्स प्रमोशन स्कीम होती है. या फिर तुम लोग अगर शॉप में जाते हो तो दैट टाइम वो लोग क्या बोलते हैं कि इसे परचेज़ करो, ये अच्छा है. बोलते हैं कि नहीं? इसके लेकर तो देखो, बहुत अच्छा है. तो ये सब हम लोग सेल्समैन के ऊपर भी भरोसा करके परचेज करते हैं. दैट टाइम डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट विल राइज. देन टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन. टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड. टेस्ट एंड हैबिट इन्फ्लुएंस द डिमांड कैसे होता है?
एवरी टाइम टेस्ट हैबिट्स बदलते रहते हैं, तो उसके वजह से क्या होती है कि डिमांड चेंज होता रहता है. न्यू फैशन हिट्स द व्हेन द न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट राइजेस. क्या हो जाता है, उसका डिमांड बढ़ता है. देन लेवल ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट ऑफ टैक्सेस leads to high rise in price, and if rise in price is there, there is a fall in demand. Don't write increase decrease word over here, I will tell you why. Okay, afterwards next lecture में. Okay, like subscribe my channel. Okay.